In a surprising development, Indian wrestler Vinesh Fogart was disqualified from the Paris Olympic for not meeting the weight requirement for a 50 kg gold medal match. Reports indicate Fogart was 100 grams over the allowed weight limit, leading to her disqualification. Fogart was set to compete against United States' Sarah Ann Hildebrand for the gold medal. Fogart had secured her place in the gold medals match by defeating Cuba's Yusnelis Guzman Lopez 5-0 in the semi-finals on Tuesday night. The Indian Olympic Association gave this statement. It is with regret that the Indian contingent shares the news of Vinesh Fogart's disqualification from the women's wrestling 50 kg class. Despite the team's effort through the night, she was few grams over 50 kg this morning. No further comments will be made by the contingent at this time. The Indian team requests respect for Vinesh's privacy and will focus on ongoing competitions. So why was Vinesh Fogart disqualified? Vinesh Fogart initially met the weight limit for Tuesday's bouts, but was required to remain within her category on both days of the competition. She was reportedly 2 kilos overweight on Tuesday night. Olympics wrestling weight rules. Wrestlers are weighed before the match and on both days of the competition. Wrestlers must stay within their weight category on both days of the competition to stay qualified for the event. Despite intensive efforts including jogging, skipping and cycling through the night, she could not lose the final 100 grams. The Indian delegation requested additional time for Fogart to meet the weight criteria, but their request was denied. Fogart, who typically competes in the 53 kg category, has faced similar challenges before, narrowly making the cut during the Olympic qualifiers. This was not the first setback in Olympics for her. In a cruel series of events, she got injured at the Rio Olympics in 2016, eliminated the Tokyo Olympics quarterfinals in 2020, and this time was disqualified at the Paris Olympics. There are 18 weight classes with 6 each for Greco-Roman, men's freestyle, and women freestyle wrestling. The weight classes are as follows. भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा PT उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। विनेश मंगलवार 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 केजी रेसलिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। उन्हें बुधवार 7 अगस्त की रात करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के अमेरिकी रेसलर सारा एन हिल्डरब्रांड से मुकाबला करना था। जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है
भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ओलेर अकोच कोच के रूप में उसके साथ थे, वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है।